Welcome to Shortcut Children. Now I'm back with a series of sample papers that will really help you for your board examinations that will be in May 2021. So here is the first sample paper from the series, that is, we'll start with social science first, and these sample papers will be really helpful for your coming examinations. Now hope so that most of these papers will really be helpful for you so that you can score good marks in the upcoming exams. And today we'll be solving our first paper of social science. So the first question you can see here is match the column. So before starting, let me remind you, if you are new to my channel, please subscribe it so that the other videos that I'm gonna upload will be notified to you and will be helpful for your upcoming examinations. So the part A, that is the objective section, consists of 24 questions that will be of 1 mark, and I'll be providing you all the answers of this objective section, that is part A, and other question answers will be discussing, and the question answers that you will be doing yourself. So part A will be given to you right now. So let's start the paper. The first question is match the following, and the question is Bhavnath Fair. Bhavnath Fair, where it takes place. So the answer is Bhavnath Fair is in Junagadh. So first answer is Junagadh. The second one is Gangotri of music, and I hope everybody knows it is Samveda. Third one is Ajanta Caves. It's in Aurangabad. Black soil is also called Rega. So this is the fourth answer. And the fifth one is lowest human development index, that is Niger. So these are the 5 match the columns, and the answers are in front of you. Now moving on to the second part, that is the sixth question. Let's see. State whether the following statements are true or false. So you have to find out whether these are true or false. The first question is Abhigyan Shakuntalam is renowned drama of भास. अभिज्ञान शकुंतलम जो है, क्या वो भास के द्वारा लिखा गया है? जी नहीं. It is incorrect. So it is false. The first one is false. The seventh question is the poets Pampa, Ponna and Ranna are known as the trio of early Kannada literature. जी हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पंपा, पोन्ना और रन्ना जो थे, वो तीनों ट्रायो कहलाते थे कन्नड़ लिटरेचर के. सो इट्स ट्रू. एंड द एट्थ वन इज रबी क्रॉप आर टेकन टिल अक्टूबर नवंबर. इट्स इनकरेक्ट. फॉल्स. नाइन्थ वन इज प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री. बिल्कुल सही. इट्स ट्रू. Madhya Pradesh is the poorest state of India. No, absolutely wrong. It's false. The 11th question is a valuable gift from our forefathers to us means what? It's heritage. We call it heritage. हु कंपोज्ड गीत गोविंद. गीत गोविंद जो थी, उसे किसने कंपोज किया था? द आंसर इज जयदेवा. इनटू हाउ मेनी टाइप्स आर सॉइल्स डिवाइडेड इन इंडिया. भारत के अंदर सॉइल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इट्स 8 पार्ट्स, जो कि आपके चैप्टर के अंदर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके होंगे. टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम may come in your examination. The 14th one is who is called the pioneer of consumer movement. कंज्यूमर मूवमेंट के पायनियर के रूप में जाना जाता है राल्फ नादर को. इट्स राल्फ नादर. So let's move on to the fill in the blanks. The 15th question is dash Chinese traveler took 657 manuscripts with him from Nalanda University.
Options are given, and out of these, this is the correct answer, that is Hyun Sang. Hyun Sang is the correct answer. He was the Chinese traveler. In 1150, भास्कराचार्य कंपोज डैश एपिक. भास्कराचार्य जो थे उन्होंने किस एपिक को कंपोज किया था 1150 में? आंसर इज लीलावती गणित. Dash has been built by black stone, so it is called as black pagoda. Very important questions every time. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स, और जब भी ये चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है ये क्वेश्चन हमेशा अंडरलाइन करवाया जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस. इसका सही आंसर है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. ये ध्यान रखना है आपको. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ये दोनों कंफ्यूजिंग है काफ़ी, बट सन टेम्पल ऑफ मोधेरा जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. दिस इज़ द करेक्ट आंसर कोणार्क. Dash Abhyam Women Helpline number has been started for women's security so that they can get guidance just by making a call. अब अभ्यम वुमन हेल्पलाइन जो है नंबर, वो कौन सा है जिसमें महिलाओं को मदद की जाती है तुरंत उस नंबर पर कॉल किए जाने पे? तो इसका आंसर है हमारा 181. 19th क्वेश्चन जो है वो है KNF एंड KNA आर रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डैश स्टेट. अभी दो जो रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पर दिया गया है कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपको जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें मिलेगा. द आंसर इज मणिपुर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव. सो दीज आर MCQs. सिद्धीज द डांस ऑफ द माल डांस वर नेटिव ऑफ डैश. सिद्धीज जो हैं वो कौन से स्टेट के या कौन से कंट्री के नेटिव्स हैं? तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ अफ्रीका. तो ये आपको याद रखना है, सिद्धीज जो हैं वो अफ्रीका के नेटिव्स हैं, याद रखिएगा ये. ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था. टॉम्ब ऑफ हुमायूं जो था वो किसने बनवाया था? तो 21st का आंसर है हमारा सी, हमीदा बेगम. तो ये भी आपको याद रखना है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनाया गया था हमीदा बेगम के द्वारा. 22nd क्वेश्चन जो है वो है सम क्रॉप्स टेकन इन इंडिया सॉइल रिक्वायर्ड फॉर देम, रीजन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लाइमेट एंड स्पेशलिटी ऑफ क्रॉप्स एटसेट्रा आर गिवन बिलो, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई इट. अब यहाँ पर क्रॉप का नाम दिया गया है, उसमें कौन सी सॉइल चाहिए वो बताया गया है, उसमें कंडीशंस की बात की गई है कि रेन कितनी चाहिए एटसेट्रा, फिर वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये सारी जो क्रॉप की स्पेशलिटी भी बताई गई है कि कैश क्रॉप है या किंग ऑफ सीरियल्स एटसेट्रा. अब इनमें से एक इनकरेक्ट है, वो आपको ढूंढना है. ज्वार के बारे में बताया गया है, देन वीट, ब्लैक लूमी सॉइल, टेम्परेट जोन, रबी क्रॉप पंजाब, भाल, किंग ऑफ सीरियल्स, शुगर केन, ब्लैक सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, उत्तर प्रदेश, साउथ गुजरात, कैश क्रॉप. चौथा है हमारा जूट, एलुवियल फर्टाइल सॉइल ऑफ द डेल्टा रीजन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वेस्ट बंगाल, असम, कैश क्रॉप. अब इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? वेल आई थिंक ए, दैट इज ज्वार, दिस इज इनकरेक्ट. तो हमारा जो ऑप्शन आंसर में रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि ज्वार का जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया दिस इज इनकरेक्ट. 23rd क्वेश्चन इज विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी सिटी को कहा जाता है? वेरी इजी टू रिमेंबर, द आंसर इज बी, बेंगलुरु. बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. तो ये आंसर आपका ठीक आंसर है. The last of section A is under which article of the constitution untouchability has been eradicated. अब अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से एरेडिकेट की गई है, यानी कि हटाई गई है? आर्टिकल 25, 29, 2017 और 46. सो आंसर इज आर्टिकल 17. So this was all about part A. Now part B, we can see here these question answers will really help you for the examination, so go through it. Now moving on to part B, the first question is write answers of any 9 questions from 12 questions given below. So each question is of 2 marks. तो हर एक प्रश्न जो है यहाँ पर 2 मार्क का है. It is of 18 marks total. Now first question is India is a land of ancient culture, explain. तो भारत जो है वो एंशियंट कल्चर का लैंड है, इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा है. सो यू विल गेट दिस आंसर इन योर फर्स्ट चैप्टर, हेरिटेज ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट इज द contribution of Australoid people in the development of Indian culture and civilization is immense, explain। तो ऑस्ट्रेलाइड लोगों के बारे में आपको लिखना है कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय कल्चर को डेवलप करने में मदद की है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलाइड थे वो भारत आए थे साउथ ईस्ट एशिया से, और उनके कॉम्प्लेक्शन भी डाल सकते हैं आप किस प्रकार के वो दिखते थे, और उनके द्वारा किए गए कार्य यानी कि उन्होंने कौन कौन से काम वो यहाँ करते थे, और वो किस प्रकार से इंडियन कल्चर में मिक्सअप हुए, और किस तरीके से भारतीय कल्चर को डेवलप करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। सो दिस विल गेट, you will get in your first chapter only। The next question is describe the contribution of ancient Gujarati literature to the ancient Indian literature। अब गुजराती लिटरेचर का भारतीय लिटरेचर के अंदर क्या हाथ है, किस प्रकार से उसने योगदान दिया है गुजराती लिटरेचर ने भारतीय लिटरेचर के अंदर, वो आपको लिखना है यहाँ पर। 28th क्वेश्चन जो है हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया विच आर दे। तो इसमें आप 4 वेदास के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं वो 4 वेदों के बारे में लिखना है, सामवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। द 29th क्वेश्चन इज स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये दोनों खासकर। तो सॉइल इरोजन को रोकने के तरीके बताने आपको, आप जानते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के सिंपल देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से ये रुकता है। दूसरा आप क्या करेंगे इसमें, अगर आप बाय हैविंग कॉन्टोर मेथड, यानी कॉन्टोर मेथड से अगर आप खेती करेंगे ढलान वाली जगहों पे, खासकर पहाड़ी इलाके जहाँ पर स्लोप रहती है वहाँ पर, उससे भी ये सोइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो एनिमल ग्रेजिंग है उसके ऊपर बैन लगा कर या उसको कंट्रोल करके भी ऐसा किया जा सकता है। पेड़ तो हम लोग लगा के इसको रोक ही सकते हैं खाली जगह पे। इसके अलावा आप लोग चेक डैम्स को बनाकर भी आप सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपको क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसमें आपको लिखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, और इसका शुरुआत करने का इसका रीज़न था वो था टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। उसकी संख्या इतनी घट गई थी कि उसको बचाने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट चलाना पड़ा। उस समय आपको लिखना है कि कितने टाइगर्स बचे थे, फिर किस प्रकार से उससे हमें फ़ायदा हुआ है कि अभी टाइगर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। देन 31st क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन जो है आपको, ये भी आपको चैप्टर 9 में ही मिलेगा, जिसमें आप जो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के बारे में हमने जानकारी ली थी, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही दिया गया है, वो आपको लिखना है यहाँ पर और शॉर्टली इसको बताना है आपको। नेक्स्ट इज स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जो है इंडिया वाटर रिसोर्सेज। तो वहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है उनके एडवांटेजेस में हम जानते हैं कि देखिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उससे उस पानी का उपयोग आप अलग अलग चीज़ों के लिए वाटरवे के तौर पे भी कर सकते हैं, इवन वहाँ पर आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं एक्सेट्रा। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वहाँ से जंगल को साफ़ करना पड़ता है, इनकी पेड़ काटे जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है, वहाँ से उनको बेघर किया जाता है, और वहाँ जो पशु पक्षी रहते हैं उनको भी, उनसे भी उनका घर छिन जाता है। तो देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो दिस। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। मूविंग ऑन टू 33rd इज नाउ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग 13 चैप्टर के अंदर, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इसका रीज़न आप ये भी लिख सकते हैं कि जूट इंडस्ट्री जो है वैसे तो दूसरे कंट्री से भी भारत को बहुत ज़्यादा टक्कर मिल रही है, तो भारतीय इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम तो फेस कर रही है। तो ये आपको 13 चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ से मिलेगा ये आंसर। द 34th वन मेंशन स्टेप्स टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, उसकी जो प्योरिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो प्योरिटी है वो समाप्त होती जा रही है। उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पर हमें ये लिखना है, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसका आंसर शायद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ये बहुत ही आसान है भी क्वेश्चन, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म पॉवर्टी एंड राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। पॉवर्टी के बारे में लिखना है और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको लिखना है।
ये आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। पॉवर्टी को आपको डिफाइन करना है कि जो लोग अपने लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते हैं, नॉर्मल मेडिकल सुविधाएं या उनके पास मतलब बहुत ही जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको हम पुअर कहते हैं और इस कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप 3 लिख सकते हैं। नाउ आगे दिया गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है और इनकी फुल फॉर्म भी देनी है। सो जो एफ आप देख रहे हैं, आपको एफ का फुल फॉर्म भी लिखना है और ये भी बताना है कि ये मार्क जो है ये कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये एफ का जो मार्क है इज़ यूज फॉर द टिन्ड जैम, फ्रूट जूसेस, स्क्वैश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जैसे कि जैम होता है जिसको पैक किया जाता है टिन के बॉक्सेस के अंदर, या फिर फ्रूट जूस हो गया, स्क्वैश वगैरह फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो कि पैक्ड रहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर, ये आपको नोट कर लेना है। फ्रूट्स प्रोडक्ट एंड लास्ट वन ओ इज फॉर ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो ये है आपका FPO। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता लगी और ये किसके लिए होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज MPO। MPO जो है इट इज़ यूज फॉर मीट एंड मटन प्रोडक्ट्स, इसको मीट और मटन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। MPO स्टैंड्स फॉर मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो जैसे ही वहाँ पर फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर था, वैसे ही यहाँ पर मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 37th क्वेश्चन, जो कि सेक्शन भी हमारा यहाँ पर चेंज हो गया है, सी सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लें, इसका क्वेश्चन क्या है। राइट एनी 6 आंसर ब्रीफली फ्रॉम 9 क्वेश्चन गिवन बिलो, 3 मार्क्स ईच। तो ये 18 मार्क का है, कोई भी 6 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन हमारा, देर इज़ नो बुक, देर इज़ नो स्कल्पचर, देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो डीड, inform about that art with which this statement is associated to। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। देर इज़ नो बुक, देर इज़ नो स्कल्पचर, देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो डीड, ये सब चीज़ें, ये जो बातें हमारे सामने रखी गई हैं, ये स्टेटमेंट जो है ये कौन से आर्ट के साथ एसोसिएट किया गया है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। और 38 जो है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स के ऊपर, जो कि आप लोग टेम्पल्स के बारे में जो क्वेश्चन चैप्टर है हमारा उसमें ये मिल सकता है। और 37th क्वेश्चन जो आपका है ये आपको 3rd चैप्टर में मिलेगा, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और खजुराहो टेम्पल्स वाला चैप्टर जो है वो आपको ये लगभग ये मिलेगा आपको 6th चैप्टर के अंदर, खजुराहो टेम्पल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो कल्चरल हेरिटेज की जो प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको लिखना है। वहाँ बहुत सारी जगह हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या क्या लिखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे कि सिद्दी सैयद जाली है, जामा मस्जिद है, झूलता मीनार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस आंसर में लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको चैप्टर 9 में मिलेगा। और सेंचुरी और नेशनल पार्क, और मैं तो कहूँगा इसके साथ आपको बायो रिजर्व भी याद कर लेना है, क्योंकि कई बार 3 मार्क में तीनों के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। देन नेक्स्ट इज स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। वेरी इजी आंसर ये आपको मिल जाएगा 11th चैप्टर के अंदर। और व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है कि पोवर्टी उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन है जो इसका आंसर मिलेगा आपको चैप्टर 17 के अंदर। राइट अबाउट द वर्ल्ड लेबर मार्केट, WLO के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर पढ़ाते वक्त ही हम लोग टिक करवा देते हैं। तो ये आंसर भी आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 17 के अंदर।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में, वर्ल्ड लेबर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द बॉक्स गिवन बिलो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। HDI रिपोर्ट है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ ऑर्डर यानी कि इसमें 1 से लेके 49 तक, 1 से 49 तक कंट्रीज़ आती हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें वो कंट्रीज़ रहती हैं जिनका HDI जो है 0.802 रहता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ की। और आगे है HHD यानी कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हाईएस्ट, देन हाई, देन मीडियम, देन लो। अब इसमें 1 to 49 आती हैं कंट्रीज़, फिर 50 to 105, 106 to 143, 144 to 188। इनका HDI एवरेज बताया गया कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया का नाम यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, इसमें इंडिया का नाम नहीं, यस इट इज़ इन थर्ड, दैट इज़ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, विच कंट्री होल्ड्स फर्स्ट रैंक हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी कंट्री का है इसके हिसाब से, इट्स आंसर इज़ नॉर्वे। तो यहाँ पर नॉर्वे आंसर आएगा। ये आपको जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है उसी प्रकार से ये टेबल दिया है और उसको देख के आपको आंसर देना है। इन विच HDI ग्रुप इज़ इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया जो है कौन से ग्रुप के अंदर है, कौन से ग्रुप में है। तो भारत जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर है, यानी कि थर्ड ग्रुप के अंदर है। व्हाट इज़ द HDI फॉर हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए HDI क्या है, इट शुड बी अबव 0.802। ये तीनों क्वेश्चन जो है दिस विल बी बोनस फॉर यू, ये तीनों आंसर जो है 3 मार्क, दिस विल बी बोनस फॉर यू। तो सेक्शन डी देखते हैं चलिए। तो सेक्शन डी जो है इसमें बताया गया है क्वेश्चंस जो हैं आपको 4 का आंसर देना है यहाँ पर, और मैप भी है जो कि कंपलसरी है। तो 4 मार्क्स ईच, यानी कि 4 क्वेश्चंस हो गए, 4 4 द 16, और एक मैप हो गया, दैट इज़ 4 मार्क्स फॉर दैट, तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, राइट ए डिटेल्ड आंसर अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 5 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। इसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें लिखना है। So you'll get the answer in chapter number 5. फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स वाला जो चैप्टर है वही है हमारे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द टेक्निकल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 10 इंडिया एग्रीकल्चर, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको टेक्निकल रिफॉर्म्स लिखने हैं। यहाँ पर 2 रिफॉर्म्स के बारे में उस चैप्टर में दिया गया है। आई थिंक एक तो है टेक्निकल रिफॉर्म और दूसरा दूसरे रिफॉर्म्स भी दिए गए हैं उसमें। तो इसमें आपको टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि टेक्नोलॉजी में जो सुधार हुए हैं उसके बारे में लिखना है। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है जो कि आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सीजन। तो भारतीय मौसम सीज़न के हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में लिखना है। तो भारत में आप जानते हैं गर्मी भी बहुत होती है, सर्दी भी बहुत होती है, और बारिश का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और बहुत कम भी होती है और नहीं भी होती है। तो ऐसे में आपको कुछ क्रॉप्स ले लेनी है जिसके बारे में ये भी देखना है आपको कि कौन से सीज़न में वो क्रॉप लगाई जाती है। जैसे कि हम विंटर सीज़न में लगाते हैं, हमारे यहाँ पर गेहूँ होता है, फिर जो हमारा कॉटन है उसकी कटाई हम समर में करते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कुछ क्रॉप्स के बारे में आपको 4-5 क्रॉप्स का वर्णन यहाँ पर करना है, अलग अलग सीजन में लगने वाली। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ड्यूटीज़ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की ड्यूटी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस के अंदर। ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर, आपको बिल लेना चाहिए, आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, ये वो आंसर है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि कस्टमर एज ए कंज्यूमर आपकी ड्यूटी क्या है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक ही चीज़ है। तो कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक ही हैं। अगर कंज्यूमर यहाँ पर कस्टमर लिखा है तो डोंट गेट पैनिक। 50th क्वेश्चन, ग्लोबल अफेयर्स आर कैरिड आउट विद मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन अबाउट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि ग्लोबल अफेयर्स यानी कि विश्व स्तर पर जो आप बातचीत की जाती है, हम कह सकते हैं विश्व में जो भी कारोबार किया जाता है एक्सेट्रा, वो सारे कारोबार यानी कि मैथमेटिक्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, किए जाते हैं।
तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स के बारे में डिटेल में लिखना है। तो आपको यहाँ पर फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहीं से इसको आंसर को आपको लिखना है। मैथमेटिक्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट डालना है। 51st क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पसंद आए तो आप इनमें से ये क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट अबाउट इट। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन एंड वी लिव इन इंडिया। और भारत जो है वो टेररिज्म से बहुत बुरे तरीके से पीड़ित है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक होते ही रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल समस्या है, सिर्फ भारत की या किसी एक देश की समस्या नहीं। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम यानी कि वैश्विक समस्या है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐसे किस्से अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो कि विश्व में जो टेररिज्म का सबूत देते हैं कि टेररिस्ट जो है किस प्रकार से उन्होंने विश्व के अन्य देशों को भी बहुत बार शिकार बनाया है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को गिराया गया था, वो भी बहुत बड़ा विश्व का एक हमला था, टेररिस्ट अटैक था। इसके अलावा बहुत सा न्यूजीलैंड के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था। तो अलग अलग कंट्रीज़ में होता रहता है ये अक्सर। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है इसके बारे में। Now moving on to the last question. In the outline map of India given to you, show the following details with proper symbols at their correct locations. तो हमें यहाँ पर मैप के अंदर शो करना है सैंडी सॉइल कहाँ मिलती है। राजस्थान, गुजरात लिख सकते हैं आप। गिर नेशनल पार्क जो कि आपके गुजरात के अंदर है। शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, तो यूपी को आप आसानी से मैप के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। सेंटर प्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, तो कोई भी एक सेंटर आपको लिखना है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र बनता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र आई थिंक गुजरात के अंदर भी बनाया जाता है, तो वहाँ पर कोई भी एक सेंटर आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे दिए गए हैं जो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम यानी कि टेररिज्म वाला क्वेश्चन है, ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर, टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली कि आप ये क्वेश्चंस आसानी से पढ़ के देखिए, ये भी 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 3 मार्क आपके हो सकते हैं। तो अगर आप ये इस सेक्शन के अंदर आप बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आप आसानी से, आई वुड लाइक कि ये और ये क्वेश्चन तो आप अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 8 मार्क्स। 8 के बाद अगर आप ये 3 मार्क्स तो फ्री के हैं, इसको तो आप आसानी से छोड़ने बिना, आई डोंट थिंक कि भी कोई भी बच्चा इसको छोड़ेगा। तो 8 और 3 11। 11 के बाद मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में, पॉवर्टी से रिलेटेड, क्योंकि पॉवर्टी कैसे शुरू होती है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, सेंचुरी नेशनल पार्क और बायो रिजर्व का क्वेश्चन मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन चारों जो आप देख रहे हैं आसानी से हो जाने चाहिए। अहमदाबाद के अंदर की जो प्लेसेस हैं, अगर आप अहमदाबाद के नज़दीक में रहने वाले हैं, नहीं भी रहने वाले हैं, गुजरात के अंदर आप रहते हैं, तो आप आसानी से जानते ही होंगे कि अहमदाबाद में कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको पाँचों के पाँचों, तो ये 15 नंबर आपको आसानी से दिलवा देंगे। 15 और 3 18, और पीछे हम 8 मार्क ऑलरेडी स्कोर कर सकते हैं। तो 26 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे इतने से ही। इसके अलावा आपको अगर मैं कुछ और अगर गाइडेंस देना चाहूँ तो आई होप कि 18 मार्क के बाद ऑब्जेक्टिव्स को मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यानी कि 26 के अंदर 2 मार्क और जोड़ लीजिए, हो गया 28। ये भी आसान प्रश्न है, 1 मार्क इसमें आपका कहीं नहीं जाएगा। 29 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी आप पढ़ सकते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे हम रोक सकते हैं, यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है या फिर एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है हमारे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो इनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखने जाएँ तो यहाँ पर 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ जो 24 मार्क का जो पार्ट है उसको छोड़ने के बाद भी, बट द थिंग इज़ यू हैव टू राइट एंड राइट, इनके आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, गो थ्रू इट ट्वाइस और थ्राइस, और जैसे ही आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, जो मेन वर्ड उसमें आपको मिल जाए, फिर आप उस पर सोचना शुरू करिए। मल्टीपर्पज़ यानी कि जो डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान आसानी से हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेदास वाला। तो यहाँ पर आप इस सेक्शन के अंदर भी आप देखिए तो आप इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन करके 10 मार्क तो कहीं भी नहीं छोड़ने वाले। तो 26 पीछे हम स्कोर कर सकें और 10-12 मार्क्स यहाँ पे, तो 36 to 40 मार्क हमारे आसानी से यहाँ पर हो जाएंगे। और बाद में अगर हम पार्ट ए की तरफ चलें तो वहाँ पे 24 में से अगर हम 15 मार्क भी ले लेते हैं तो 65 to 70 मार्क्स
नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेन। तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1, और आई बी bringing some other papers also of other subjects also. So बी इन द क्यू, लाइन में रहिएगा अगले पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर जो है इसको ध्यान से आप पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।